देखो आसिला तो ग्रीन है ग्रीन चलला बा लाइव हेला आपण और देखिए सेपटे मोबाइल रे देखुन जपा वही सब चैनल देखुन तो लाइव देखिए हम क्लास करो Good evening, everyone. Good evening to all. Today we will discuss GS paper. To little bit, I will just 5 to 10 minutes I will spend on the GS paper to what to cover. Then we will talk our today's topic, that is the Indian Ocean geopolitics. So our main focus of the topic would be our main focus. I will be focusing on this particular topic, but before that we will little bit, as yesterday I was having problem, like I forgot to got my charger from the institution, and that is why I had to abruptly end up the class yesterday. So today I will try to take your whole class so that Indian Ocean geopolitics को मैं complete करे पिन चेष्टा करी भी. So before that, जो paper 2 hope समझते already we have shared your syllabus, that is the decoded syllabus with you, and I believe everybody has gone through that paper and the syllabus as well. So main focus तो तुम्हारा whole syllabus हमें complete करीबो. Let's say तुम्हारा international organization ही जो for example मुझे देखो तो syllabus. This syllabus we will complete this syllabus. जो मैंने भी those who are joining for the GS crash course, we will complete our syllabus. I will show the syllabus. Yesterday I was not able to show and talk into the detail of our syllabus. Today I will talk about in detail with the syllabus. Fast 5 to 10 minutes I will spend on the syllabus. How to join your class? Class Indrajit, as you are talking. So
फोन नंबर मु देदेवि तुमको है ना जस्ट वेट फॉर द 5 मिनिट्स आम आगे कौन करवा डिस्कस करवा सिलेबस व्हाट टू कवर इन द पेपर 2 देन वी विल कम्स टू द इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स टॉपिक जोटा अच्छी आमर टॉपिक ऑफ द डे ताको आम डिटेल रे पूरा डिस्कस करवा कंटाक्ट नंबर जदि तुमको दरकार कंटाक्ट नंबर मु शेयर कर दूची contact number I have shared, so this one is the contact number है ना. So guys, I will personally recommend you guys to subscribe to our this particular design course, that is the GS paper 2. So our GS program जोटा आम लॉन्च करिचे ऑलरेडी लॉन्च कर सारीचु जो थे पुरुषोत्तम सार असंती, ललित सार अछंती एंड माई सेल्फ. So we three peoples are there. We will cover your GS paper, whole GS paper for the paper 1 and paper 2. My target would be paper 2 and paper 2 रो जो statistical part रहेगा तुम्हारा statistics that would be done by the Purushottam sir. History and art and culture, that things would be done by the Lalit sir. Purushottam sir will deal with the polity, governance and social issues. I will deal with your paper 2 basically, that is the international affair, the foreign affair. Here I will little bit 5 to 10 minutes more spend karbi, then I will back to my main topic, that is the geopolitics of Indian Ocean. Okay. Good evening everyone. Santosini, Indrajit, Destiny. So everyone, very good evening to all and welcome to the ways of. So in the paper 2 we will discuss, let's say, India's relation. जेतेबले भी आमी international relation पढ़ो हमारो target कौन था है कि our target would be India's interest. Let's say India is having interest in South Asia. We will talk about the South Asia and India. Let's say India is having interest in the Central Asia. We will talk about India's relation with the Central Asia. जो थरा में SCO organization कथा discuss करूँ, Shanghai Cooperation Organization जोटा कि Central Asia पाई. Let's say India is having interest for the West Asia है ना, जो थरे तुम्हारा let's say हमें कोई भी ऐसी I2UT कथा नहीं जाओ, और let's say हमें India UAE relation कथा नहीं जाओ जोटा कि ये बे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कथा चलची, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट ऊपर भी चलची हमरो, और वी आर हैविंग गुड रिलेशन विथ व्हाट इजराइल कथा भी हम डिस्कस कर परिबा, हाउ इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन दिस वेस्ट एशिया और द मिडल एशिया ताकू भी हम डिस्कस करबा. इंडियाज ऑयल डिपेंडेंट ए रीजन ऊपर ताकू भी हम डिस्कस करबा डिफरेंट एंगल टू. एशिया पैसिफिक रीजन रे इंडिया रे इंटरेस्ट कोन एंड व्हाट इज द रोल इंडिया इज गोइंग टू प्ले फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, that we will talk about that. Then we will talk about the Africa. Let's say what exactly the big game is being played in Africa. Let's say the big game, when I say big game is being played in Africa, that means let's say India, China, USA, all these top 5 or the top 20 countries, they are, everybody wants to get the stronghold. That is basically I will talk about the economic stronghold over the Africa. Then what exactly the India's stand on Europe and how to deal with the European issues and the Europe as a whole. So joti India interest hochi, that areas we will cover. Then we will comes to the what, let's say US China relation, and basically जो US China relation, this is not much more importance for India, but we can't avoid this one because of the fact is that they are the two superpowers. So Indian Ocean region, and this is very significant point, Indian Ocean region. Here in Indian Ocean region we will talk about, let's say, Indian Ocean Rim, or let's say I would say Sagar initiative कथा नहीं जाओ, let's say BIMSTEC कथा नहीं जाओ, और you may say the SARC कथा नहीं जाओ. तो ये जेते भी आमर ऑर्गेनाइजेशन छी ताको हमें डिस्कस करबा. इंडियन ओशन रीजन रे इंडिया रे इंटरेस्ट कोन सबुठी इंपोर्टेंट होची, इंडिया रे जोठी इंटरेस्ट नहीं हमें ताको डिस्कस करबा नहीं, बिकॉज वी नीड एट द एंड ऑफ द डे आवर इंटरेस्ट मस्ट बी सर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन. इफ इंडिया इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर रीजन, वी विल डिस्कस दैट रीजन विद द फोकस, विथ आवर फोकस वुड बी. हाँ जोटा तुम कहे कि जो ऑयल टैंक जोटा बोस्पोरस स्ट्रेट होकर आसूला कि इंडिया को आसूला टर्की चेक कर देछि, दैट इज
करेन्ट डेभलपमेंट जोटा देखा दैट मीन्स से कौन तुमको जो कथा तुम कौच डेस्टिनी आज यू हैव मेंशन दैट इज द ऑयल टैंक जोटा कि हॉल्ट करी टर्की दैट वुड बी डिफरेंट मैटर देयर यू कैन मेंशन दैट इंटरनेशनल गेटवेज देन वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल सिक्योरिटीज एंड रिलेटेड टॉपिक्स लेट्स से ये तालिबान जो तालिबान तुम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आसी लास्ट ईयर सॉरी एंड ग्लोबल टेररिज्म जो तालिबान वाला क्वेश्चन आसीला एठू आसला आमर जो सिलेबस अनुसार आम पूरा वेल डिजाइन सिलेबस करूँ कवर करूँ एक्सटर्नल सिक्योरिटी रे आम तालिबान कथा नहीं जाओ और लेट्स से एनी काइंड ऑफ अदर स्टेट एक्टर हो पारे ईदर दैट कुड बी योर स्टेट एक्टर हो पारे और नॉन स्टेट एक्टर हो पारे we will discuss the state actor and non-state actor those who are creating a threat to the Indian sovereignty and Indian security as well. Then we will talk about the nuclear policy of India with respect to Russia, USA, Japan, how we are maintaining our nuclear policy and how we are coordinating with Russia, how we are coordinating with the USA and Japan. All this that would be also dealt in depth manner and with current scenario as well. Then we will talk about the Indians abroad. There we will talk about the Indian diaspora in the West or the Middle East, Indian diaspora in the Gulf, that region itself the same. Then we will talk about the that is the what East Asia, Middle East, West, Oceania, all this region. Indian diaspora kete amaro economy ko help karuchi, Indian diaspora problem kono, what are the step is been taken by the Indian government to woo the Indian diaspora as well. These things we will deal in that particular region. Then economy part, जदि हम economy part रे देखिबा, let's say the Niti Aayog will be the talk of the town. We would not discuss the planning commission because that is the what that is been replaced. Economic development, here in economic development like what let's say the any kind of monetary policy हेगला, inflation हेगला, or let's say किसी industrial policy हेगला ताको हमें discuss करिबा. Any kind of development, latest development related to the economics, that would be the trade issue. Let's say सेटा गोटे trade issue हे परे, that could be your inflation, that would be economic or let's say the export import हे परे, सेटा गोटे topic तमर export import related हे परे, or that could be trade related हे परे. Let's say the trade barrier कथा नहीं जाओ, free trade कथा नहीं जाओ, exclusive आमे कहबा economic zone भी इथरे में little bit discuss करतो, or let's say the SEPA कथा पे भी discuss करि परिबा है ना little bit. Then LPG reform एथरे भी तमर discuss हबो, and the role and function of IMF हेगला and India IMF relation. So बहुत important होची India रे interest कोन ना, India IMF relation, India World Bank relation, WTO रे किसी conflict चली कि नहीं, WTO रे mandate कौन है ना, RBI, ये सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हमें डिस्कस करबे. देन ओडिशा इकोनॉमी भी डिस्कस करा छियो, रीजनल डिस्पैरिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओडिशा एज वेल. ओडिशा री रीजनल डिस्पैरिटी एटू लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आसीथिला. देन इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस रे हमें देखिबो जोटा कि तमरो दीज आर द इंस्टीट्यूशन आई हैव पिक्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जोड़े कि तुमर अपडेट रहिबो, फॉर एग्जांपल I2 रहिबो, U2 रहिबो, क्वाड हे गला. दीज आर द थिंग्स वुड बी आल्सो टेकन इनटू द कंसीडरेशन while whoever will cover this part. We will ensure that you are getting UN, ILO, UAE hela, SARC hela, WHO, ICJ, BIMSTEC, Quad, BRICS, UNESCO, FAO. These would be the topic we will cover. OPEC, OECD, UNEP, UNHC, HR, WWF, these are the organization आपको भी हमें कवर करेंगे. NATO लास्ट टाइम पचा था, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी कथा नहीं जाओ. These are the things we will discuss. That means paper 2 रे ये सब टॉपिक रहबो जाको जति डिस्कस करू छ हमें जो डेप्थ मैनर रे डिस्कस कर देबो, एंड दैट वुड बी द बेस्ट यू आर गोइंग टू गेट द व्हाट क्वेश्चन फॉर्मेट रे हमें ताको डिस्कस करबो, व्हिच वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर गोइंग टू सब्सक्राइब the what GS crash course programs in the ways of or under the guidance of Purushottam Mishra, Lalit Kumar, the Lalit sir and me as well. So you will get this kind of things. Then in science science and technology रे जदि हमें देखिबा, any kind of policy government has evolved, or let's say the government कौन से policy करिछि. आमर स्पेस प्रोग्राम हेगला, ऑर्बिट कथा डिफरेंट ऑर्बिट कथा नहीं जुआ, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम कथा नहीं जुआ, सैटेलाइट डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट हे जो लेट्स से तुमरो साइंस जी सैट हे जो कि तुमरो PSLV, GSLV, SLV हे जो कि GSLV मैक 1 हे जो मैक 2 हे जो गगनयान मिशन हे जो चंद्रयान 1 एंड 2 GPS हेगला, किंबा आमर जहाँ भी अच्छी गगन हे जो भुवन हे जो IRS सिस्टम ग्लोनस जहाँ भी अच्छे हमारे डिफरेंट मिशन आपको हमें deep space mission जति की भी हमारे अच्छे लेट्स से द deep space mission including the deep sea mission as well.
लेट्स से द डीप सी मिशन को भी हमें कवर करवा जहाँ भी लेटेस्ट डेवलपमेंट रहा साइंस एंड टेक्नोलोजी इंक्लूडिंग लेट्स से एनी काइंड ऑफ जदि आम कह कौन जो स्कीम सब करा साइंस टेक को प्रमोशन करने जमी अटल इनोवेशन है जो जहाँ भी आमर अच्छी ताकू आम फोकस कर जहाँ स्कीम वगैरह रही आईटी एंड कम्युनिकेशन भी डिस्कस करा लेट्स से द जनरल कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करवा मोबाइल डिफरेंट जनरेशन लेट्स से 4G है 5G वोल्ट कौन वाईफाई कौन मैक्स कौन इंटरनेट कौन डब्ल्यू कौन IP कौन URL HTTP VPN वन एंड LAN these are the things we will also डिस्कस पूरा हमें डिस्कस करूँ ब्लूटूथ है वाईफाई हॉटस्पॉट इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो सुपर कंप्यूटर नैनो टेक्नोलोजी क्लाउड कंप्यूटिंग है ये सब जिन को आम कवर करूँ तुम पेपर टू बिग डेटा QR कोड है लेट से ई करेन्सी भी आसी जाइए ई रुपी कथा आम नहीं ई रुपी सो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस हियर ई रुपी ओके ई रुपी आम ये डिस्कस करदे डिजिटल इंडिया कथा नहीं जाओ मेघराज कथा कोड फ्री इंडिया ई क्रांति भारत नेट दीज आर द थिंग्स वी विल डिस्कस होल पेपर पूरा तुम कवर करा नाउ आई विल कम्स टू द इंडियन ओशन रीजन सो इंडियन ओशन रीजन रे को प्रकार क्वेश्चन हो पारिबो ओके सो now we will now try to cover the Indian Ocean geopolitics. Now Indian Ocean geopolitics जति हमें देखिबा कि Indian Ocean geopolitics is always what I would say hot topic. If you are appearing for the civil service examination, that could be your let's say the OPSC or UPSC you are appearing for, that would be always hot topic. This would be always I would say what hot topic. Then why? Because of the development, because of the always something is coming out from the Indian Ocean region. That would be the naval exercise, that would be the let's say blockade of the international tradeways, or I would say the economic interest, let's say any kind of disaster organization, different organization केबे ना केबे सबले न्यूज रे था इंडियन ओशन तो जदि आम देखा दिस वुड बी द क्रैश कोर्स तुम 2021 मेन्स पे रहिबो पेपर 2 अंडर आसुची इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स even those who are having geography as the optional they are also having the same topic geography optional रे हमको एटा देखियो को मिलिबो है ना तुम जीएस रे यूज करि परिबो एसए रे भी आसी परिबो ये टॉपिक ऑब्वियसली आई वुड से एसए रे भी हमें देखिबा एसए जीएस एंड ऑप्शनल एंड इट वुड बी आल्सो ऑप्शनल रे कवर हे जिवो प्लस you can use anywhere this topic if you are having so at least the general awareness of this particular topic UPSC क्वेश्चन देखी पार तुम यूपीएससी क्वेश्चन 2019 एंड यूपीएससी क्वेश्चन 2018 बैक टू बैक आम जो देख यूपीएससी क्वेश्चन पचारि दैट इज द व्हाट जियोपॉलिटिक्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन तो नाउ इंडियन ओशन आम पढ़ा कहीं नाउ क्वेश्चन आरएचएस के भी आम कहीं पढ़ा कौन एमती किसी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती कि बिल्कुल आम जो देखा डीप सी मिशन इंडिया तार कौन कर डीप सी मिशन जेहेतु इंडिया तार डीप सी मिशन कर दैट मीन्स अगेन इंडियन ओशन इन द न्यूज because of the what deep sea mission okay so jehetu deep sea mission karichi india because of the what extraction of the polymetallic noodles from the floor of indian ocean jodi ame kah floor of the sea तो सी रे जो फ्लोर रू पॉलीमेटालिक नोडल्स सब को एक्सट्रैक्शन करा जो सेथे पे एंड आल्सो टू डू द रिसर्च एंड ऑल काइंड ऑफ द हमें कबा चाहे क्लाइमेटिक कंडीशन है जो लेट्स से द ओशन रे टेम्परेचर को नहीं जाओ जैसे सैलिनिटी को नहीं जाओ डिफरेंट दिस इज नॉट कि दिस इज नॉट ए व्हाट आई वुड से यूनि डायरेक्शनल प्रोजेक्ट दिस प्रोजेक्ट इज व्हाट तेणु करके जेहेतु डीप सी मिशन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन द डीप सी मिशन तेणु करके आपको हमें पढ़ाटा बहुत जरूरी एंड चांसेस अच्छी नाउ सिग्निफिकेंस जदि हम देखा कि इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स इंडिया पे सिग्निफिकेंस कौन प्रथम कथा जिते भी आंसर लिखुचे ना कि लेट्स से इंडियन ओशन रो सिग्निफिकेंस हम लिखुचे कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन फॉर द इंडिया फास्ट ऑफ ऑल आगे लिखा पड़े कि इंडियन ओशन इज स्प्रेड ओवर लेट्स से आगे मैपटा कर देबो तुम इंडियन ओशन रो मैप करबा मैंडेटरी है ना यू हैव टू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडियन ओशन okay so Indian Ocean this is the Indian Ocean region okay you have to फटाफट तुम कौन करियो गोटे मैप ड्रॉ करियो and let's say this one is your what Red Sea here would be the Red Sea here would be the Gulf of Persian this would be your what Arabian Sea Bay of Bengal and this would be the whole Indian Ocean so Indian Ocean is bounded by the Africa in the west in the east Australia and I would say the what
that is the India in the north. So this is the whole Indian Ocean, that is the what, the third largest ocean in the world. तो आगे Indian Ocean रो गोटे introduction दे देबो. इंडियन ओशन रो इंट्रोडक्शन देला परे देन तमे सिग्निफिकेंस को आसीबो. तो सिग्निफिकेंस रे कोन, फॉर एग्जांपल कि इंडिया पे हमर वर्तमान मु तुमको कहली कि न्यूज रे काहे की अछि. तो न्यूज रे एथि पे अछि ते लेटेस्ट डेवलपमेंट हमें कोन देखबा, दैट इज द डीप सी मिशन. सेथि पे हमें पढिबा को डीप सी मिशन अछि अंडर द व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे एम्बिशियस प्रोजेक्ट डीप सी मिशन जदि हम देखबा, एंड दैट वुड बी what done by the whom, ISRO. That the task is given to whom, ISRO. तो डीप सी मिशन करा जिवो. तो डीप सी मिशन काहे करूचे, तो किसी तो बेनिफिट हवा दरकार, बिकॉज इंडिया इज हैविंग ए ह्यूज EEZ. So that is what exclusive economic zone. So India is having one of the largest exclusive economic zone and the largest exclusive economic zone in the Indian Ocean region. So India is having the largest exclusive economic zone in the Indian Ocean region. So that's why it's ought to be, or for the government of India rightly has taken the mission, that is the deep sea mission, to get the benefit out of this EEZ, one of the largest in the Indian Ocean and probably the largest exclusive economic zone. Okay, so this one. So now we will talk about the deep sea mission little bit. Either they will ask you the what significance of the Indian Ocean, or they will ask you ki what is the reason for the geopolitics of Indian Ocean, or they will ask you discuss the deep sea mission of India, or they will ask you let the Sagar initiative, or they will ask you IOR, that is the what, Indian Ocean Region Initiative, है ना. चाहे से तमरो सागर कथा नहीं छो इनिशिएटिव, चाहे से इंडियन ओशन रीजन इनिशिएटिव नहीं छो, अदरवाइज तुमको सिग्निफिकेंस पचारि पारे, और से तुमको कॉजेस ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन इंडियन ओशन पचारि पारे. तो डिफरेंट ऑफ क्वेश्चन आसी परिबो. अदरवाइज तुमरो डीप सी मिशन एबे लेटेस्ट हेछि आकु भी से पचारि पारन. तो कौन से प्रकार क्वेश्चन भी आसी पारे, ठीक है ना. तेणु करके आम फास्ट क्वेश्चन देखिदेव कि फास्ट प्रॉबल क्वेश्चन जीएस रे आम देखा इंडियन ओशन रीजन रो डीप सी मिशन. प्रथम कथा तो डीप सी मिशन कहीं कराउछि, सी डीप सी मिशन एथि कराउछि बिकॉज जदि आम देखा कॉन्टिनेंट रो रिसोर्स बहुत ही जल्दी डिप्लीट होछि. सो डिप्लीशन जदि आम देखा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द लैंड, बहुत ही जल्दी आम देखा रिसोर्स डिप्लीट होछि. एंड जदि तुम चाहूच इंडिया को गोटे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने, इफ यू वांट टू मेक द इंडिया एज ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ताहले हमको कौन कर आम रिसोर्स दरकार एंड रेयर अर्थ, आउ कौन दरकार हमको रेयर अर्थ मटेरियल्स दरकार. तेणुक आम जदि आम फोकस ना कौन करुचे ब्लू इकोनॉमी को, now focus is shifted to the every country around the world, they are now shifting their focus into the blue economy. तो ब्लू इकोनॉमी को जेहेतु आम शिफ्ट करुचे आम फोकस, तेणु डीप सी मिशन करवा बहुत जरूरी, बिकॉज डीप सी मिशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी. व्हेन आई से ब्लू इकोनॉमी, दैट मीन्स द इकोनॉमी एसोसिएटेड विथ द वाटर. से तुम फिशिंग हो पारे, से तुम विंड एनर्जी हो पारे, से तुम टाइडल एनर्जी हो पारे, से तुम ओशन जियोथर्मल एनर्जी हो पारे, सी सरफेस टेम्परेचर को लेकिन आम कर आक्वाकल्चर हो पारे, इको टूरिज्म हो पारे, से तुम मिनरल्स हो पारे, ऑयल हो पारे, तुम अदरवाइज लाइमस्टोन वगैरह हो पारे, से भी तो नेचुरल गैस एंड ऑयल भी तो आसूचे ना वाटर बटी. सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ कमिंग अंडर द ब्लू इकोनॉमी एंड इंक्लूडिंग आम कह पॉलीमेटालिक नूडल्स कथा भी आम नहीं जा, पॉलीमेटालिक नूडल्स कथा भी हमें नहीं जाओ. सो दीज आर द थिंग्स ऑल टुगेदर आई विल से द ब्लू इकोनॉमी, पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी. तो ब्लू इकोनॉमी जदि आम लिखुचे कि डीप सी मिशन, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी रो पार्ट भी आसूची. होप एवरीबडी इज गेटिंग मी, है ना. अच्छा समस्त बुझा पड़ुचे ना. होप यू आर गेटिंग मी. एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ इंग्लिश और आई शुड गो विथ मिक्सड. एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ इंग्लिश. Anyone is having problem, you can also share with me. I'm going through your comment as well. So okay, so deep sea mission जदि आम देखा, deep sea mission focus करुचे solely to explore करिबा में, that means Indian Ocean को explore करिबा, deep water को आम explore करिबा, both that means also हमको कौन ना minerals कौन अच्छी सेठी, other resource कौन अच्छी, living and non-living entities or the components we will focus. Okay, so thank you, Tiki. So thank you everyone for your feedback.
and respond as well. So that means आम जो कहे डीप सी मिशन आम कहीं कर एक्सप्लोर करवा व्हाट टू एक्सप्लोर द लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी आम एंटिटीज अच्छी ताकू एक्सप्लोर करवा मैपिंग करवा दैट मीन्स प्रथम कथा मुझे सर्ट जदि कहबी वी हैव टू डू द मैपिंग ऑफ द सी फ्लोर प्रथम कथा हमको जना ही ना इंडियन ओशन जो तुम बॉटम टोपोग्राफी को आम मैपिंग करें वी नीड टू डू द मैपिंग आउ कौन आमको तार डाइवर्सिटी जानियार अच्छी आमको कौन ओशन रो डाइवर्सिटी जानिबा दैट मीन्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज कथा मुझे कहूँ सो दैट आमको कौन हो ओशन विषय आमर अवेयरनेस बढ़ी बढ़ी जीव बिकज आम जो ओशन को यूज करने भावुचे लेट से तुम मनसून कथा भी नहीं जाओ कि जिते आम डीप सी मिशन करुचे कौट ना कौटी आम तार रिलेशन मनसून सहित भी आम से रिसर्च रू किसी एमती जिनस भी आसीपे लेट से हाउ टेम्परेचर इज इम्पैक्टिंग द मनसून कि भी तुम सालिनिटी कथा नहीं जाओ प्रेशर कथा नहीं जाओ डेंसिटी कथा नहीं जाओ एमानकर मनसून रे रोल कौन ताकू भी हमें लिंक करें और लेट्स से द पॉल्यूशन कुड बी अनदर पॉइंट आम कहीपर पॉल्यूशन कथा भी हमें कहीपर तो ये सब जिनस को जो आम कहते डीप सी मिशन डज नॉट मीन्स ओनली इकोनॉमिक एंगल वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एंगल वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट फ्रॉम द एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू प्लस आम कह क्लाइमेटिक जोटा कि आम मनसून वगैरह कहे ताकू भी आम ए आड कर डीप सी मिशन रे है ना ताकू भी आम इजिली आड कर हाँ कि नहीं तो ओब्वियसली मनसून जो आम प्रेडिक्ट करुचे सी सरफेस टेम्परेचर को कैलकुलेट करुचे तो जो आम डीप सी मिशन करुचे सी सरफेस टेम्परेचर केते रोची को टाइम रे रोची मनसून रो इंटेंसिटी ताकू भी आम लिंक करिपरिबा एथरे तो आम फास्ट रहबो कोन आम मैपिंग करवा ये जो डीप सी मिशन रो फास्ट टारगेट रहबो मैपिंग ऑफ द सी फ्लोर को मैपिंग करिवो कोठी को मिनरल्स मिलुची केते डेप्थ रे मिलुची केते परिमाण रे अछि केते एरिया रे अछि सो दैट आम नेक्स्ट कौन डिसाइड करवा केमिति माइनिंग करवा है ना तेणु करके आमर फास्ट रहिबो कौन ताको मैपिंग करदेले आम सी फ्लोर को एक्सप्लोरेशन करवा जमती कि एनर्जी हो मिनरल्स हो बाकी सारा जिनस को आम एक्सप्लोर करवा तापे मिशन आम कर देख दैट इज अबाउट रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस ओ स्मार्ट ये गोटे आमर कौन कहे टेक्नोलोजी इसरो तार कौन कहे ओ स्मार्ट गोटे आम कह सबमर्ज भेहिकल जहाँ आम कह पठाज ओशन तल को से जाकि कौन कर स्टडी कर ओशन है ना तो टेक्नोलोजी बिकज दिस इज वी नीड टू ऑल्सो डेभलप द टेक्नोलोजी कारण टेक्नोलोजी डेभलप न कले 5500 मीटर तल को जाकि एक्सप्लोर करवा इज ए व्हाट माउंटेन और द हार्कुलियन टैक्स आम कह कारण प्रेशर बहुत थाए वाटर जिते तुम समुद्र तल को जाऊछ ना प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी जाए तेणु करके ब्रस्ट हबार चांसेस थाए से आमको आगे कौन करवा रोबोट सब पठेकी ओ स्मार्ट टेक्नोलोजी अच्छी ताकू आम कौन सेंड करके आम तो ओ स्मार्ट टेक्नोलोजी द्वारा आम सबमर्जिंग भेहिकल आम कह पठाई करा ना की प्रोजेक्ट कौन की प्रोजेक्ट आम देखा डीप सी मिशन रे कौन कौन आसूची जोटा मुझे कहली कि 5500 मीटर तल को जाकि एक्सप्लोर करवा एंड तार एनवायरमेंट को सेठी जो एनवायरमेंट जो हार्श एनवायरमेंट अच्छी ताको स्टडी करवा वेदर दिस इज फिजिबल फॉर द एक्सप्लोरेशन और फॉर द माइनिंग और नॉट माइनिंग हो पार कि नहीं जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अच्छी तार आम बेनिफिट नहीं पारिबा कि नहीं द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीप सी मिशंस आर फॉलोज आम जदि कहवा डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज फॉर द डीप सी माइनिंग करवा अंडर वाटर भेहिकल आम पठेबा रोबोट ना तो लोक जाकि माइनिंग करवा इट्स ए डिफरेंट बॉल ऑफ गेम आई वुड से द डेवलपमेंट ऑफ द ओशन क्लाइमेट चेंज उपर डिस्कस करी जोटा मुझे तुमको कहूली टेक्नोलोजी रे इनोवेशन करवा डीप सी माइनिंग केमती करवा तार बायोडाइवर्सिटी को जानिबा ये सब हूँ डीप सी मिशन रो फोकस आम कहवा तेणु तुम गोटे सर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स रे इजिली डीप सी मिशन रे हमें लिखिपर एंड जदि आम डीप सी मिशन सक्सेस हो गला दैट मीन्स आमर जो ब्लू इकोनॉमी अच्छी से तुम कौन तुरंत एनहांस हो ब्लू इकोनॉमी सो इंडिया विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट ब्लू इकोनॉमी रो हमको बेनिफिट मिल जाव प्लस आम कहवा आमर जो एंगेजमेंट अच्छी ना एंगेजमेंट विथ तो आम कहवा ओशन बढ़ी जीवो एंड व्हेन यू आर माइनिंग इन दिस रीजन यू आर ऑल्सो कीपिंग ए व्हाट आई ओवर दिस रीजन तो तुम सिक्योरिटी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अच्छी ओब्वियसली आवर सिक्योरिटी विल ऑल्सो एनहांस आमर जो सिक्योरिटी अच्छी से भी एनहांस हो इंडियन ओशन रीजन रे एंड द इंडियन प्रेजेंस विल ऑल्सो इनक्रीज इंडियन नेवी कथा नहीं जाओ लेट्स द कोस्ट गार्ड कथा नहीं जाओ और ये सब भी इंटरेस्ट कोट ना कोटी एमानकर भी बढ़ी जीवो सो दैट वुड बी द ऑल टुगेदर बेनिफिट फॉर इंडिया जदि आम डीप सी मिशन को कौन करुचे सक्सेसफुली कर दौचे और इफ दैट
come out as a successful mission जदि हेगला ओके ये रहिबो नाउ जदि हम देखिबा आउ कोन तुमको एमती क्वेश्चन भी पचारि पारे कि डिस्कस द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया ये भी क्वेश्चन हे पारे समस्त जानछे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होची 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन जो हमर बेस लाइन अछि फ्रॉम द बेस लाइन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सी लॉज बा अनक्लोज जाको हम कहूचे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन गोज अप टू द 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम योर बेस लाइन टू 200 नॉटिकल माइल है हमें ओके मैप मु तुमको मैप तो देखी ना फॉर एग्जांपल इंडिया मैप ये करदेली हियर इज द अरेबियन पेनिनसुला हो गला ये तुम आफ्रिका दिस साइड वुड बी आफ्रिका एंड ऑस्ट्रेलिया एपटे साइड रही है ना ये तुम देखिपार इंडियन ओशन मैप तो मैप इनक्लूड कर जिते बड़े भी इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ चांस टू इंसर्ट ए मैप डोंट हेजिटेट you can easily insert that map and so okay, these are the exclusive economic zone of India is having a huge exclusive and the largest exclusive zone if any country is having here that is the India okay तो आमे देखि परबे दैट मींस आम पाखरे केते अछि देखो 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आम पाखरे अछि कोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडियन ओशन रे अछि अरेबियन सी रे अछि बे ऑफ बंगाल रे अछि दैट मीन्स इंडिया पाखे बहुत ही बड़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अच्छी जोटा तुमको अनक्लोज अनुसार के 200 नॉटिकल माइल्स जाए रहिबो फ्रॉम द बेस लाइन मु तुमको कहली तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रो बेनिफिट कोन जदि मु कहबी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अच्छी 2.37 million square kilometer that will be a game changing for the 5 trillion economy केमिति कारण ये जो तुम एक्सक्लूसिव जोन इकोनॉमिक जोन अच्छी एथरू तुम कौन कर जो माराइन प्रोडक्ट्स अच्छी हमर माराइन प्रोडक्ट्स आसो फॉर एग्जांपल मु कहबी ऑयल नेचुरल गैस लेट्स से आई विल से इन टर्म्स ऑफ व्हाट तुम जो कार्बोनेटेड रॉक हो गला है ना कार्बोनेटेड रॉक आसी जाई पारे एथरे तुम सैंड एज द मिनरल्स मुके भी मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ रॉक लेट्स से कार्बोनेटेड रॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट लाइमस्टोन भी तो को मिली जबो है ना देन सैंड मिली जबो इन फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स देन यू विल हैव व्हाट विंड एनर्जी तुम विंड एनर्जी भी कारण विंड फैन बा टर्बाइन लगी कि हमें करि परिबा इको टूरिज्म हे परिबो तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी हो पार चाहे से एक्वाकल्चर नहीं जाओ चाहे से मैरीकल्चर नहीं जाओ चाहे से फिशिंग कथा नहीं जाओ तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वॉल्व होकि अच्छी तेणु करके जदि आम यूज करुचे प्रॉपर यूज करुचे बा आम बेनिफिट उठाऊे आमर जो ह्यूज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अच्छी दैट वुड बी ए गेम चेंजिंग सिनारियो फॉर इंडिया तेणु करके अच्छा इंडिया को कौटी सेंट्रल इंडियन ओशन जोड़ा तुम कौच डेस्टिनी आज यू आस्ट मी दैट इज द सेंट्रल इंडियन ओशन जो आमर इंडिया अच्छी ठीक इंडिया ये श्रीलंका सेंट्रल श्रीलंकार आम देखा वेस्ट एंड साउथ को दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन इज गिवन टू इंडिया फॉर द माइनिंग है ना जो तुम अच्छा समस्ते जानते इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो माइनिंग पे परमिशन दब किए जो तुम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रे माइनिंग करिवो ताकू परमिशन दब किए दैट परमिशन विल यू विल गेट फ्रॉम द व्हाट इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी लोकेशन जमाइका किंगस्टन ओके इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ही तुमको परमिशन दब माइनिंग पे आमर जो सेंट्रल इंडियन ओशन रे इंडिया को माइनिंग पे कौन मिली ना 1987 रे इंडिया गेन द स्टाटस ऑफ द पायनियर इन्वेस्टर्स आम देखा जो थी कि 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर रीजन रे तमें माइनिंग कर कौन जो पॉलीमेटालिक नूडल PMN कहले पॉलीमेटालिक नूडल दैट मीन्स 1987 रे इंडिया को दिया जाइथिला कोन आमे कहबा दैट इज द व्हाट इंडिया को दिया जाइछि कोन माइनिंग करिया पे दिया जाइछि तो दैट मीन्स पे माइनिंग पे तो दिया जाइछि बट आमे माइनिंग करि पारुना बिकॉज वी आर हैविंग लैक ऑफ टेक्नोलॉजी तेणु हमको टेक्नोलॉजी रे इन्वेस्ट करियार अछि हमको तार बेनिफिट नंबर अछि पॉलीमेटालिक नूडल्स रो बेनिफिट नंबर अछि है ना तो 2002 रे देखो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कंडक्ट और दैट इज व्हाट जदि आम देखा आमर ISA जोटा अच्छी ये कौन कर सर्वे करथिला सर्वे करके कौन कला जदि देखा आमको देले केते 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को देइचंती माइनिंग करिया पे तो हमर इंडियन ओशन रे अछि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को माइनिंग करिया पे देइचंती कि आमको रिसोर्स एनालिसिस करके इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आलोकेट करचंती दैट मीन्स आमे वर्तमान माइनिंग केते करिवु 75,000 स्क्वायर किलोमीटर टू इंडिया
किए देछि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एलोकेट कर देछि ना परमिशन के भी मिली थला 1987 रु तो ये तुमको लिखिबो माइनिंग किए करिवो कहाँ अंडर रे द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कि इसरो को टारगेट दिया है ओ स्मार्ट कथा नहीं जाओ तो एठी तुमको लिखि परिबो दैट मींस एठी हमें कोन ब्लू इकोनॉमी कथा इनडायरेक्टली पढुछ हमें ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ इंडिया है ना ये तुमको एठी देखिबा सो दैट इज दैट मींस आमे देखुचे ये कोन देखुचे ना हमर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडियन ओशन रे अछि तापर हम इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स धीरे धीरे जिबा कना याकू बेसिक हमर देखिबा तो देखो कोन अछि हमर जो पॉलीमेटालिक न्यूट्रल अछि तादरे सबुठो अधिक तुमको देखा जबो कोन सो दैट इज 880 मिलियन टन्स अप्रोक्सीमेटली हमको देखा जबो जो पॉलीमेटालिक न्यूट्रल भितरे यदि हम देखिबा मैग्नीशियम केते अछि कॉपर केते अछि है ना आयरन अच्छी और सब अधिक मैंगनीज सब अधिक कौन देखा पॉलीमेटालिक नूडल्स रे पॉली अर्थ डिफरेंट मेटाल है ना पॉलीमेटालिक नडुल्स अर्थ मतलब पोटाटो सेप रे एमती गोल 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 हेकी सब कौन थे पड़ी थाए ओशन फ्लोर लेट्स से ये ओशन फ्लोर एथरे एमती नडुल गुडा एमती पड़ी जो थरे कि दीज आर द पॉलीमेटालिक डिफरेंट मेटल लेट्स से मु कहबी मैंगनीज हे गला आयरन हे गला तो ये सब मिक्सड है कि थाए से मान को कह पॉलीमेटालिक नूडल बिकज डिफरेंट ये गोटे नूडल रे ना लेट्स से ये गोटे पीस ऑफ नूडल एथरे डिफरेंट मिनरल सब रही आम कह मेटालिक मिनरल्स रही से को कह पॉलीमेटालिक नूडल्स ओके तो ये पॉलीमेटालिक नूडल को हमको एक्सट्रैक्ट करियर अछि फ्रॉम द सी फ्लोर इंडियन ओशन रो सी फ्लोर रो हमको एक्सट्रैक्ट करियर अछि सो दैट वुड बी यूज इन द बट फॉर द फिनिश गुड्स एंड प्रोडक्ट आम कहबा तो कोबाल्ट रो देखिते गोटे एस्टिमेटेड रिसोर्स दिया देन आमे देखिबा एबे आमे देखिदे दैट मींस इंडियन ओशन रो इंपोर्टेंस जेतलो आमे कहूचे लेट्स से समबडी विल आस्क यू द क्वेश्चन के डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन सिग्निफिकेंस होची कि फॉर द सिक्योरिटी इंडिया पे कोन पे दरकार सिक्योरिटी बिकॉज़ इंडिया इज हैविंग मोर देन 7500 बट आमे कहबा कोस्टल लाइन जोड़ कि मेनलैंड ऑफ इंडिया अदरवाइज 7500 बट 7000 आमे देखिबा 600 है ना 7600 किलोमीटर हमें कहबा कौन एवरेज हमें कहबा इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ इंडिया जदि हमें कोस्टल लाइन तो हमको सिक्योरिटी दवा पड़ो दैट सेति पे हमको इंपोर्टेंस देन हमें रिसोर्स कथा नहीं जो लेट्स से मिलियंस टन्स ऑफ व्हाट हमको रिसोर्स अछि पॉलीमेटालिक रिसोर्स अछि ब्लू इकोनॉमी कथा भी तमे ऐड करि परिबो ईईजेड कथा तमे ऐड करि पर दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑयल रिजर्व कथा नहीं जाओ गैस रिजर्व कथा नहीं जाओ इंटरनेशनल trade also passes through this region so these are the significance of Indian ocean region जति हमें कहबा तणु और लेट्स से हमें कहबा वी आर आल्सो मतलब श्रीलंका नहीं जो श्रीलंका रे जो चाइनीज नेवी आसुची बा तांकर प्रेजेंस तांकर डॉक दिस थिंग्स ए वर्ष यूपीएससी क्वेश्चन पचाइथे जीएस मेंस रे जो चाइना रो जो हमर जो कोन थिला गोटे जाको कोन कहवा जे जो गोटे तांकर नेवल सीप आसिक डॉक करके थिला श्रीलंका रे जे कि सर्वेलेंस करूथला तारी ऊपर क्वेश्चन पचर आई तो सिग्निफिकेंस रे जेतला हमें पढुचे दैट मींस हमें पॉलीमेटालिक नूडल्स कथा लिखिबा हमें ईईजेड कथा लिखिबा हमें ब्लू इकोनॉमी कथा लिखिबा सो दीज आर द थिंग्स तो मु पूरा तुमको डेटा गोटे गोटे डिस्कस करी जाउचे देन रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन काहे कि इंडियन ओशन रीजन रो एते हमें देखिबा नाउ व्हाई फोकस इज शिफ्ट टू द इंडियन ओशन रीजन मैरीटाइम बाउंड्री मैरीटाइम बाउंड्री रो किछि भी नहीं जदि तमे मते पचारुछ कोन मैरीटाइम बाउंड्री नहीं ईईजेड थाए मैरीटाइम बाउंड्री कहा पई नहीं देखो एक तो होची तमरो लेट्स से ए रहला तमरो इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहबो तमरो 200 नॉटिकल माइल्स है ता परे जो एरिया रहे ताको कहवा जे हाई सी जाको भी कहवा जे ग्लोबल कॉमन है ना सो देयर आर थ्री ग्लोबल कॉमन एक तो तमरो हाई सी गोटे रहला तमरो स्पेस एंड गोटे रहा तुम डीप सी कथा नहीं जाओ एंड अंटार्कटिका दीज आर द ग्लोबल कॉमन है ना तीन टा ग्लोबल कॉमन अच्छी गोटे है तुम हाई सी गोटे है स्पेस है ना जोटा आम कह स्पेस आ गोटे है अंटार्कटिका दीज आर द थ्री ग्लोबल कॉमन जो थे समस्त इक्वाल राइट अच्छी तेणुक मैरिटाल बाउंड्री ना है ना तार किसी न था ओके डन सो रीजन कौन रीजन आम देखा कि इंडियन ओशन रो एते सिग्निफिकेंस बढ़ुची कौन पाई बिकॉज ऑफ जदि मु कहबी कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन और द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन कारण भाव इंडियन ओशन इज द रीजन टू द वर्ल्ड रो 1/3 पॉपुलेशन इंडियन ओशन रीजन रे रहउची दैट मीन्स वर्ल्ड रो व्हाट लार्जेस्ट मार्केट आमे कहबा इन अदर टर्म
I will say the world largest market. Bhavo, India 1.4 billion. But 1.4 billion population जोठी रहुची, one of the huge market in the world exist here. Apart from that, तमें कथा नहीं जो लेट्स से तुम्हें अरब कंट्रीज कथा नहीं जो बांग्लादेश कथा नहीं हो पाकिस्तान कथा नहीं हो तमें म्यांमार कथा नहीं हो श्रीलंका कथा नहीं हो दीज आर द डेभलपिंग इकोनोमीज जेहेतु एठी मार्केट अच्छी डेभलपिंग इकोनोमीज तो everybody will try to invest into this particular region because these are the growing region of the world and Southeast Asia is the fastest growing region in the world in terms of economy तेणु करके समस्ते चाहती Southeast Asia region और the Indian Ocean region को फोकस करिया पे that is also one of the main reason कि काहे कि Indian Ocean रो importance बढ़ी बढ़ी जाउची है ना तो इंडियन ओशन रो इंपोर्टेंस बढ़ी बढ़ी जाउची तो एमिति आमे डेली तुमको टॉपिक डिस्कस करिवु जेमति आज डिस्कस करूची एवरी टॉपिक तो कि आउ एंड डिफरेंट एंगल्स रो हम डिस्कस करूचे कि लेट्स से इजेड सिग्निफिकेंस कोन इंडिया को एठी हमें अनक्लोज कथा भी डिस्कस कले कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कथा डिस्कस कले इंडियन ओशन रो सिग्निफिकेंस कोन डीप सी मिशन हमें देखुचे ना हमें देखुचे रीजन बिहाइंड द हमें इंपोर्टेंस कोन इंपोर्टेंस होची 1/3 पॉपुलेशन होची 25% ऑफ द लैंड मास एठी होची प्लस 40% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व तुमको इंडियन ओशन रे देखाଯିवो इंडियन ओशन मीन्स रेड सी पर्शियन गल्फ अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल देन इट वुड बी व्हाट ताई से तुमरो जाभा सी कथा नहीं जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कथा नहीं जो होल इंडियन ओशन रो सेंट्रल पार्ट एंड आल्सो द व्हाट माडागास्कर रीजन जहाँ रहला ये सब होल रीजन को आम इंडियन ओशन रीजन बोली कहूचे है ना दैट मीन्स 40% दुनिया रो ऑयल एंड गैस अच्छी ताले एठू जानि पाथो सिग्निफिकेंस कोन दैट मीन्स इंडिया रो एनर्जी सिक्योरिटी लाइज इन दिस रीजन so energy security of India lies in the Indian Ocean region hence India will always try to dominate this region to protect this region for its own interest then India 70% डिपेंडेंट ऑयल जोटा मु कहली एई रीजन रो आसे बिकॉज ऑफ द गल्फ कंट्रीज चाहे से तमर यूए हे जो सऊदी हे जो कतार हे जो बहरीन हे जो ईरान हे जो दीज आर द कंट्री हैविंग शेयरिंग द इंडियन ओशन बॉर्डर तेणु ये रीजन रो हमको देखिबा हमको इंडिया रो एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड करूची इंडियन ओशन रीजन रे प्लस जदि मु कहबी दुनिया रो 80% एक मिनट इंडिया रो मोर देन 80% ट्रेड जदि मु कहबी इंडिया रो India more than 80% trade passes through the coastal region, through the coast, through the ports. That is why you have to safeguard the Indian Ocean again, as because of the trade, because of the economic interest. Our economic interest नथिले security केबे भी आसीबो नहीं, है ना? Then हमें देखिबा 80% of the world seaborne trade. भाव दुनिया रो भी 80% ट्रेड एई पटे जाउची. Why? Because of the fact is that your Red Sea, Suez, your what? Red Sea. That is the what? जदि आम देखा सुएज कैनाल एंड हियर इज द सुएज कैनाल समस्ते जानिछे सुएज कैनाल अच्छी तेणु जेहेतु एटी सुएज कैनाल अच्छी एटी अच्छी तुम साउथ रे कि अच्छी मालाका स्ट्रेट अच्छी नाउ जदि जी भी तुम देख यूरोप को जिते भी सीप देव सुएज कैनाल है कि यूरोप को जीव बा मेडिटेरियन सी को जीव एंड ऑल द सीप लेट्स से जापान कोरिया चाइना को जीव को पटे जीव मालाका स्ट्रेट है कि जीव that is the through the Malacca Strait. That means हमें कहबा 80% of the world trade also passes through the Indian Ocean. पूरा ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करोची इंडियन ओशन तेणु करके ये भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हम देखा से भी इटसेल्फ ये तुमको इंपोर्टेंस बढ़ाई दूची वर्ल्ड रो 80% ट्रेड इंडिया रो मोर देन व्हाट आई वुड से 80% लगभग 80 to 85% इंडिया रो ट्रेड पासेस थ्रू द पोर्ट्स और द कोस्टल रीजन ये भी सिग्निफिकेंस हाँ है ना तेणु करके देन आम मालाका स्ट्रेट कथा नेले मालाका स्ट्रेट आउ कौन इंपोर्टेंस बिकज ऑफ द वर्ल्ड रो चोक पॉइंट लेट से तुम बाबल माल्ट कथा नहीं छो लेट से तुम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कथा नहीं छो दैट इज द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करूची बाबल माल्ट कथा नहीं छो रेड सी एंड व्हाट गल्फ ऑफ आडेन को कनेक्ट करूची सो दीज आर द चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड तेणु ये सब जो चोक पॉइंट को यदि कौन से कंट्री कैप्चर कर दउची जेमति कि आज जो कथा उठी पूर्व आम डिस्कस करूथिले कि जो बोस्फोरस स्ट्रेट रे जो सीपटा ऑयल नहीं कि इंडिया को आसला ताकू टर्की अटके देछि सो दीज आर द व्हाट चोक पॉइंट्स तो ये चोक पॉइंट्स को जदि कहीं कैप्चर करूची पूरा ट्रेड कट ऑफ हो भाव जदि तुमे ए जो अछि तुमरो बाबल मैंट अछि एठी जोटा कि रेड सी एंड गल्फ ऑफ आडेन को कनेक्ट करूची छोटिया पैसेजटा जो जदि कहीं कैप्चर करूची पूरा ट्रेड इन द इंडियन ओशन डिस्टर्ब हो सो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो सबु कंट्री चाहे निजर कोन सिक्योरिटी बा नेवल फोर्स को डिप्लॉय करिया पे इंडियन ओशन रे सो दैट इज व्हाई सिग्निफिकेंस तुरंत हमें केबे बढ़ी जाउची
मालगा स्ट्रेट इंडियन ओशन कन्फ्लिक्ट आम देखिपर तो दिज आर द इम्पोर्टेंस कि इम्पोर्टेंस कौन पे ना वर्ल्ड रो 1/3 पॉपुलेशन कथा नहीं जाओ इम्पोर्टेंस कौन पे इंडिया 85% ट्रेड पासेस थ्रू दिस रीजन इम्पोर्टेंस कौन पे वर्ल्ड रो 80% ट्रेड पासेस थ्रू दिस दैट इज द सी बन ट्रेड आई एम नॉट से होल ट्रेड सी बन ट्रेड है ना देन आम देखा कौन ना मोर देन व्हाट इंडिया रो एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंड करोछि दुनियार 40% ऑयल एंड गैस ये रीजन रे मिलूची सो दीज आर द डेटा एंड फैक्ट्स यू नीड टू पुट इन योर आंसर to justify your answer that this is why the significance of Indian Ocean increases. This is why the geopolitics is being played, the big game is being played in the Indian Ocean. These are the data and facts you have to put over here. Okay, तेणु करके ये conflict हमारा conflict होची एथि पई. So these are the data you have to include into the answer. जितने बड़ी तुम Indian Ocean geopolitics लिखुचो, जितने बड़े लिखुचो, these are the facts you have to reflect. ओके तो एक मिनट सो दैट मीन्स हमें डिस्कस कले कि सिग्निफिकेंस रे आउ कौन कौन रहिबो तो हमें देखिबा सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट लेट्स से तुम सुडान कथा नहीं जाओ ईरान आउ कौन आई अच्छा मु समरी कहूँ तुमको आउ कौन इंपोर्टेंस है पारे इंपोर्टेंस हूँ अफगानिस्तान अफगानिस्तान आम कह सेंट्रल देन आई वुड से व्हाट द पाइवट एशिया पॉलिसी pivot Asia policy of which was initiated by whom? The Barack Obama. Okay, pivot Asia policy to control the China. और यदि चाइना को कंट्रोल करे पे यूएस चाहूची यूएस also need to be present itself in the Indian Ocean and also India specific region रे में कहबा तेणु करके कोठी ना कोठी पाइवट एशिया पॉलिसी भी गोटे एमिटी पॉलिसी जोटा बाराक ओबामा करथिले तांको टाइम रे टू कंट्रोल और टू कंटेन द चाइना ये भी कोठी ना कोठी तारी जोगु यूएस रो प्रेजेंस इंडियन ओशन रे बढ़ुची प्लस चाइना भी चाहूची जेहेतु तार सब्सटेंशियल ट्रेड पासेस करूची कोन थ्रू दिस रीजन थ्रू द सुएज कैनाल थ्रू द गल्फ रिजन बा गल्फ सहित जो तार भल रिलेशन अच्छी तेणु चाइना भी चाहूँ तार प्रेजेंस को बढ़ाई इंडियन ओशन रे सो दैट इज वाय समस्त इंटरेस्ट आम इंडियन ओशन रे देखा बिकज चाइना रो एनर्जी सिक्योरिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया आम कहवा तेणु समस्त इंटरेस्ट आम कह इंडियन ओशन रे रोचे प्लस इंडियन ओशन रे आउ दुईटा इंपोर्टेंट फैक्टर जदि आम देखा इंडिया एंड पाकिस्तान तुमको ये कौन इंपोर्टेंट फैक्टर बिकज बोथ आर द न्यूक्लियर स्टेट so being the two large nuclear state जदि आम देखा दैट मेक्स ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन तेणु कर इंडियन ओशन रो आम सिग्निफिकेंस बढ़ी जाऊँगी तेणु बहुत सारा फैक्ट्स आम पुट करुचे चाहे से तुम आरब डिस्टर्बेंस है जो टेररिज्म भी गोटे नहीं जाओ तेणु कर बहुत सारा आम देखा दीज आर द फैक्टर्स श्रीलंका इश्यू कथा नहीं जाओ कन्फ्लिक्ट तुम सुडान रे नहीं जाओ ईरान रे नहीं जाओ पैलेस्टाइन इश्यू कथा नहीं जाओ सो दीज आर तो आम कह दीज आर द इश्यूज जोटा कि हॉट टॉपिक रोचे एंड दैट इज वाई सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन बढ़ुची देन आम कौन कह वर्ल्ड मेजर पावर्स दे हैव डिप्लॉयड द सब्सटेंशियल मिलिटरी फोर्स इन द इंडियन ओशन रीजन जमती कि यूएस रो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरेन रो अच्छी डायगो गार्सिया रे अच्छी समस्ते जानिछ डायगो गार्सिया कथा कन्फ्लिक्ट ऑफ डायगो गार्सिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाइथिला जो थे वर्डिक आसी इन फेवर ऑफ व्हाट मॉरिशस बट फिर भी यूएसए से विड्रॉल करूना तो कोटी ना कोटी डायगो गार्सिया कथा ऑलरेडी क्वेश्चन तुम पचार सारी जोटा कि यूएस कौन यहाँ हूँ मिलिटरी बेस ऑफ यूएसए इन इंडियन ओशन हार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रे जदि देखिबो जोटा कि मॉरिशस डिमांड करूची डायगो गार्सिया मॉरिशस पई बट आको फ्रांस कौन करिछि बिकी देछि काको यूएसए को बिकी देछि जेहेतु फ्रांस को रूल करूथला के ईस्ट इंडिया कंपनी समस्ते जानिछ तेणु करी वर्तमान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो वर्डिक देछि इन फेवर ऑफ द व्हाट इन फेवर ऑफ आम कहवा दैट इज द कौन कहले मु एबे तो जेहेतु इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तुमको देछि फेवर करिछि काको आम कहवा कौन कहले मु बोली गली नाटा जाबी है ना तो ओके सो तेणु करके आम देखा ये भी गोटे कोठी ना कोठी आम कहवा लॉजिस्टिक हब होइकी बनिकी आसी यूएस तार देख से आम स्टार्ट है कौन मालाबार एक्सरसाइज 1992 रे आम इनिशिएट कले कौन मालाबार एक्सरसाइज है ना तो मालाबार एक्सरसाइज भी तुम कोठी ना कोठी जियोपॉलिटिक्स रे शामिल करिवो आ मालाबार एक्सरसाइज रो हैला कोन क्वाड
ना क्वाड जदि आम देखा मदर ऑर्गेनाइजेशन किए मालाबार एक्सरसाइज तो बिकज मालाबार एक्सरसाइज कहीं होची बिकज द डाइगो गार्सिया यूएस प्रेजेंस अच्छी जोटा मुझे कहली मॉरिशियस कथा मॉरिशियस वाज रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी जदि समस्त मन थो फास्ट कानाटिक वार मॉरिशियस रु ला बॉर्डिनेस आसिक हेल्प करता डुप्लेक्स को टू विनिंग द फास्ट कानाटिक वार कथा तो सेठी भी तुम लिंक कर पारिबो मॉरिशियस डिमांड करुछि डाइगो गार्सिया तार हो बट यूएसए छाड़ू ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मुझे तुमको कही इन फेवर ऑफ मॉरिशियस देसी तो तेणु ये भी गोटे तुम सिग्निफिकेंस के यूएस रे कौन फिफ्थ फ्लीट अच्छी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट आउ ही अटैक करथिला इराक को जो तुम सदाम हुसैन को मारथिला से एठू ए बेस को यूज करथिला तो कोठी ना कोठी जिबटी रे भी यूएस रो कोन अछि नावल बेस अछि चाइना रो भी नावल बेस अछि रियूनियन कथा नै छ आबू धाबी कथा नै छ दीज आर द मिलिटरी हेडक्वार्टर एंड द नावल बेस अछि दैट इज व्हाई द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन दैट इज व्हाई द व्हाट आई वुड से द बट जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन ता व्यतीत मुझे तुमको कही जो 40% जहाँ भी हमें तुमको ऑलरेडी डिस्कस कर देचे ऑयल रिजर्व कथा नहीं जाओ है ना पॉपुलेशन कथा नहीं जाओ मार्केट कथा नहीं जाओ इंपोर्टेंट चोक पॉइंट कथा स्टेट ऑफ हार्मुज कथा मालाका कथा नहीं जाओ बावल मैंड कथा दीज आर द इंपोर्टेंट चोक पॉइंट अच्छी आपको जी कहीं भी कैप्चर कर भाव यूएस जो मिलिटरी बेस अच्छी डाइगो गार्सिया अच्छी से जी तुम ये चेक पॉइंट को सब चोक पॉइंट को आम कह दीज आर द चोक पॉइंट को कैप्चर कर पूरा ट्रेड डिस्टर्ब हो पूरा वर्ल्ड ट्रेड ही डिस्टर्ब हो दैट इज वे समस्ते चाहते निज निज ट्रेड को प्रोटेक्ट करने मिलिटरी बेस क्रिएट करवा इंडियन ओशन रीजन रे सो लाइक दिस वी विल डिस्कस जो तुम जीएस प्रोग्राम नहीं आम जोटा 5000 रखीचु आम पूरा डेप्थ रे एमती आम प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करवा है ना ताकि आम तो से जमती कि रबरी रु बंचेबा सो दीज आर द थिंग्स आम कहबा कि इंडियन ओशन रो जियोपॉलिटिक्स रो सिग्निफिकेंस ना सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया ऑलरेडी मु कहि दिछि इंडिया रो सिग्निफिकेंस कोन कारण मु तुमको कहिछि मोर देन 80% ऑफ द इंडिया रो ट्रेड पास करूछि है ना 70% ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी कथा नहीं जाओ हमर ह्यूज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अछि देन आईओआर इंडियन ओशन रीजन इंडिया रो इनिशिएटिव 2016 रे हमें करथिले है ना तो ये सब जो इंडिया देन ब्लू इकोनॉमी कथा नहीं जाओ तुम्हें है ना इंडिया डीप सी मिशन कथा नहीं जाओ है ना इंडिया सिक्योरिटी कथा नहीं जाओ ये तेणु को आमर इंडिया ऑब्जेक्टिव अच्छी इंडिया इंटरेस्ट अच्छी इंडिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया नेशनल सोवरेनिटी कथा को आसूची है ना तेणु इंडियन ओशन आम जो देखा इज बाय मु कहबी कि बाय डिफॉल्ट एंड सिंस द सिविलाइजेशन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया आउ सेटा रहिबा भी दरकार फॉर द पीसफुल यूज बिकज इंडिया गोटे एमती कंट्री जे कि पीस को है ना पीसफुल कंट्री एंड ऑल्सो स्प्रेड दिस पीस एंड लव दिस पीस इंडिया पे ऑब्जेक्टिविटी कौन देखा एंटायर रीजन को आम कौन एंटायर रीजन रे ट्रेड करवा इन्वेस्ट करवा डिप्लोमेसी करवा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करवा है ना आमर इंपोर्ट मुझे तुमको कही इंडिया इंपोर्ट अबाउट 70% ऑफ द ऑयल इन दिस रीजन रु आसूची बाकी ये सब मुझे तुमको इंडिया ऑब्जेक्टिविटी कही ये सब बुली बांकी से ही आसिक पहुँचब तुम्हें है ना तो ये पूरा आम डिस्कस करते एथे आउ कौन देखा किसी ना किसी इंडियन ओशन रीजन रे जो सब रीजनल मल्टीनेशनल कोऑपरेशन अच्छी ताकू भी हमें फोकस करवा एथरे कौन जमती कि इंडियन ओशन रीजन होगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बामको ताकू आईओआर सिंपल भी हमें ताकू कहू आईओआर इंडियन ओशन रीजन कोऑपरेशन दैट मीन्स इंडियन ओशन चारिपटे जेते कंट्री अच्छी चाहे से आरब कंट्रीज हो चाहे से केनिया हो चाहे से सोमालिया हो चाहे से तुम रियूनियन हॉटस्पॉट हो चाहे से तुम आम कह कौन डाइगो गार्सिया कथा नहीं जाओ आम कह मॉरिशस कथा नहीं जाओ मालदीव कथा नहीं जाओ श्रीलंका कथा नहीं जाओ इंडोनेशिया कथा नहीं जाओ ऑस्ट्रेलिया इंडिया बांग्लादेश ऑल दीज आर द न्यूट्रल कंट्री साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक कथा नहीं जाओ ये सब कंट्री को मिसेकी तुम आईओआर इनक्लूडिंग आम कह क्या आम सिंगापुर फ्रांस एंड थाईलैंड भी आसूचे ये प्लस म्यांमार आसू ना पाकिस्तान आसू ना सो दीज आर द कंट्री को लेकिन इंडियन ओशन रीजन है तो इंडियन ओशन रीजन इंडिया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनिशिएटिव जो कि कोऑर्डिनेशन डेवलप करवा इंडियन ओशन रीजन रे जेते लिटरल कंट्रीज अच्छी चारिपटे इंडियन ओशन चारिपटे 23 मेंबर्स अच्छी है ना ये एक्चुअली रीजन तो आगुरी अच्छी बट 2016 को थ्रस्ट मिलता जदि मुझे से 2016 को मेंशन करी तो ये रीजन तो देखिए ये रीजन रे पूरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन सब प्रकार एमती ना कि इंडिया ऑलवेज बिलीव इन इकोनॉमिक आमर इकोनॉमिक एंड फ्रेंडली रिलेशन इन्वेस्ट करवा एनवायरमेंट फोकस है जो ऑल अराउंड फोकस करवा तो आईओआर जिते आम कहे दैट मीन्स इंडिया रो रिलेशन आमर जो
टोटल जो लिटरल कंट्रीज अच्छी से सहित मजबूत करवा केमी चाहे से इकोनॉमिक पॉइंट रो हो चाहे से डिप्लोमेसी हो चाहे से एनवायरमेंटल कोऑपरेशन हो चाहे से ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन हो चाहे से आम कह डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑपरेशन हो चाहे से फूड सिक्योरिटी लेट से सोमालिया आम कथा नहीं जा फॉर एग्जांपल मु कहबी सोमालिया रे फूड इनसिक्योरिटी अच्छी जदि इंडिया ये फूड सिक्योरिटी एनश्योर कर किसी हेल्प करुच्ची दैट मीन्स आम कह जो सोमालिया सहित आम रिलेशनटा स्ट्रंग हम सो कौटी ना कौटी आम चाहबू होलिस्टिक अप्रोच all around engagement with these 23 countries ओके तो पूरा आमर रहिबो एंगेजमेंट ओके डिजास्टर मैनेज कोठी लेट्स आम फ्लड आसला आम पाखे अधिक ऑब्जेक्ट आम पाखे एक्सपर्टीज अच्छी आम हेल्प करवा फ्लड मैनेजमेंट रे डिजास्टर मैनेजमेंट रे सब हेल्प करवा आम सस्टेनेबल ग्रोथ आनिबा से रीजन रे आउ सब इंपोर्टेंट कि रिमूविंग द इम्पेडिमेंट्स लोअरिंग द तारिफ बैरियर दैट मीन्स टू एस्टाब्लिश द ग्लोबल ऑर्डर आई विल से व्हाट ग्लोबल ऑर्डर जदि मु कहबी ग्लोबल ऑर्डर को एस्टाब्लिश करिया ग्लोबल ऑर्डर कहले तो ग्लोबल प्रिंसिपल्स तो ग्लोबल लॉज को इम्प्लीमेंट करिबा इंडिया ऑलवेज बिलीव इन ग्लोबल ऑर्डर है ना तेणु एठी आमे एठी कोन ए रीजन जेमती कहाँ अंडर कंट्रोल रे न आसु एठी हमर कोन गोटे बैरियर क्रिएट न हो लेट्स से द ट्रेड बैरियर क्रिएट न हो एठी रिमूव द ऑल इम्पेडिमेंट्स बा थ्रेड्स हम कहबा ये रीजन को आमे कोन न्यूट्रल रखिबा कि इंडियन ओशन गोटे मिलिटराइजेशन न हो इंडियन ओशन शुड बी रिमेन व्हाट न्यूट्रल है रहिबा दरकार इंडियन ओशन शुड नॉट बी ए मिलिटराइज रीजन न हो ये होची इंडिया रो ऑब्जेक्टिविटी एटी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रो एटी फ्रीडम ऑफ ट्रेड रो एटी हमें कहबा ट्रेड बैरियर क्रिएट न हो कौन से गोटे कंट्री एटी डोमिनेट न करू सिक्योरिटी हमें कहबा इनसिक्योर न हो ये सब चैलेंजेस इंडिया कौन करे इंडिया विल ट्राई टू एनश्योर ऑल दिस ओके तो इंडिया ऑब्जेक्टिविटी ये रहिबो तो जहाँ भी हो आम जो क्वेश्चन डिस्कस करवा जो तुमको क्वेश्चन दिज्व सेमती आम ऑल एंगल्स रू देन सागर इनिशिएटिव ये भी इंडियन ओशन सागर इनिशिएटिव यहाँ हूँ तुम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑल रीजन ये रीजन रो तो ऑल दिस लाइक एमती आम आगक भी डिस्कस करवा तो पूरा आम एमती गोटे गोटे दिन लेट्स मैं आज इंडियन ओशन उठेली इंडियन ओशन रो जहाँ टॉपिक चाहे से डीप सी मिशन हो चाहे से EEZ कथा हो चाहे से डीप सी माइनिंग कथा हो चाहे से आम सागर इनिशिएटिव कथा हो इंडियन ओशन रीजन कथा नहीं जाओ जियोपॉलिटिक्स कथा नहीं जाओ तार रीजन कौन सिग्निफिकेंस तो आज खाली गोटे टॉपिक को मुझे फोकस करूली कि इंडियन ओशन रे जहाँ भी सेमती जिते आम आउरी अच्छे इंडियन ओशन रे जमती आम बिमस्टेक को भी एथरे लिंक करि परिबा एथरे आम क्वाड को लिंक करि परिबा तो केते लिंक करके आम पढ़ी पारुचे ताको है ना कि रिसेंट डेवलपमेंट किसी डिजास्टर आसी तो ईच डे वी विल फोकस लाइक दिस हाँ रियूनियन हॉट्स जो रियूनियन आइलैंड अच्छी ये फ्रांस रो अंडर अच्छी से फ्रांस इज ए मेंबर कंट्री ऑफ इंडियन ओशन रीजन ओके डन तेणु करके आई विल सजेस्ट एवरीवन कि 5000 इज नॉट ए बिग डील फॉर यू बिकॉज एटलिस्ट तुमको किसी कंटेंट मिल जाव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करिवो एंड यू वुड बी मोर पंक्चुअल सो एनरोल as soon as possible है ना इनटू दिस कोर्स ओनली 5000 आम रखीचे जीएस है ना तो से एनरोल करते हो वी विल कवर इन द डिटेल फैशन वे जो सिलेबस तुमको देखी पूरा से सिलेबस कवर करी एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेसन थैंक यू एवरीवन गुड नाइट टू ऑल